سروں کی بھیڑ میں دیکھو ظلم کے آگے، جو سر نہیں جھکا وہ سر حسین علیہ السلام کا ہے۔ ماہ محرم میں ہر سال مسلمانوں کا ایک طبقہ واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے علم بٹھاتا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست تلنگانہ کا حیدرآباد سر فہرست ہے۔ آج حیدرآباد کے شہرت یافتہ حضرت بی بی کے علاوے کا دورہ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی صاحب نے کیا اور روایتی ڈھٹی پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ تلنگانہ ریڈکو کے چیئرمین جناب ایس اے علیم، سٹوین کے چیئرمین جناب عنایت علی باخری، ڈپٹی میئر حیدرآباد بابا فصیح الدین، ایکس ایم ایل سی جناب الطاف حیدر رضوی اور علاوے کے متولی جناب علی الدین عارف کے ساتھ کئی ٹی آر ایس کے سرگرم کارکن بھی وہاں موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں نئی قائم شدہ ٹی بی جی کے ایس سوسائٹی کے صدر محترمہ کویتا ایم پی سے آج سنگارینی مائننگ کے بہت سارے لوگوں نے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات دہرائی اور اعلان کیا کہ سارے ہی لوگ سوسائٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آج بھارت کی فوج کے کمانڈر ان چیف ایسٹ وائس ایڈمرل ایچ سی ایس بشٹ اے ڈی سی نے ریاست کے گورنر شری ای ایس ایل نرسمہم سے راج بھون پہنچ کر ملاقات کی اور کچھ بات چیت بھی کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم حلقہ حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ نقیب ملت جناب الحاج اسد الدین اویسی نے آج دارالسلام دفتر میں میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے مرکز کی بی جے پی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کی پول کھولی اور بتایا کہ بھارت کی بھولی بھالی عوام کو بی جے پی نے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے کیسے بیوقوف بنایا ہے اور لوگوں کو خبردار کیا کہ سत्ता میں آنے کے بعد سے بی جے پی نے باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا اور جو کیا اس سے ملک دنیا میں سالوں پیچھے چلا گیا، اور لوگوں کو ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ وہ فوراً ہوش میں آئیں اور حکومت کی پچھلی کارکردگی کو خود ہی دیکھ لیں کہ سرکار نے باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی کیا ہے۔ ملکہ فرنیچر معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ حکومت تلنگانہ کے اقلیتی امور کے صلاح کار جناب اے کے خان آئی پی ایس ریٹائرڈ نے آج بی بی کے علاوے کا دورہ کر کے پھول پیش کیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سیرت الزہرا کمیٹی کے صدر جناب علی رضا، ایڈیشنل ڈی سی پی جناب بابو راؤ، اے سی پی جناب چکرورتی، جناب علی الدین عارف اور جناب قمر حسن بھی وہاں پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے ملک پیٹ میں واقع گنج میں آج بتکما تہوار کی دھوم دیکھی گئی۔ گریٹر حیدرآباد کے ٹی آر ایس کے سیکریٹری جناب محمد اعظم علی، مارکیٹ کمیٹی کی صدر محترمہ شاہین افروز، مارکیٹ کی نائب صدر محترمہ بھونیشوری، مارکیٹ کی ڈائریکٹر شریمتی رادھا اور دوسری بہت ساری خواتین اور اہم لوگوں نے اس بدکما میں حصہ لیا۔ اس موقع پر حکومت کے ہری تہرا پروگرام کے تحت وہاں جھاڑوں کو بھی لگایا گیا اور سبھی لیڈرز نے ہندو بھائیوں کو دسہرے کی پیشگی مبارکباد بھی پیش کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ڈائنامک چیئرمین جناب الحاج محمد سلیم نے آج سارے ایگزیکٹو ممبرز کی میٹنگ بلا کر وقف بورڈ کی کارکردگی کے لیے درکار بجٹ سب کے سامنے رکھا اور آنے والے دنوں میں وقف بورڈ کے خرچے ہرجے کی تفصیلات پیش کی۔ امید ہے کہ متفقہ طور پر وقف بورڈ کا یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور ادارے کو کارکرد بنا دے گا۔ شہر کی ایک ٹی این جی او کی جانب سے گروہ کلپا میں تہوار کے چلتے بدکما کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں خواتین کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کونسل کے اسپیکر شری سوامی گوڑ نے حصہ لیا اور بدکما کے وہ ٹھمکے لگائے کہ سبھی کو یہ گیت یاد آ گیا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب سید اکبر حسین نے آج راماگنڈم کا دورہ کر کے ٹی بی جی کے ایس سنگارینی ورکرز کے انتخابات کی تشریح مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے شری ست نارائن، آر ٹی سی چیئرمین
श्री भानु प्रसाद, MLC श्री नारदासु लक्ष्मण और TRS के कई सरगर्म कारकुन वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब अलहाज असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सरगर्म कारकुन जनाब मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में नामपल्ली इलाके के सरगर्म कारकुन जनाब अहमद सैलानी और उनके कई साथियों ने बारगाह हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की जनानी गेट के पास के आज बहुत सारे मसाइल हल कर दिए। इसके बाद सुभानपुरा में वाक़े कम्युनिटी हॉल के पास वाली ड्रेनेज लाइन की चल रही तामीरी काम का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर अहलियाने मोहल्ला ने सभी कारकुनों का दिल से शुक्रिया अदा किया है। आज शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क में महकमे पोस्ट के इश्तराक से स्वच्छ भारत प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में महकमे पोस्ट के 50 से ज्यादा मुलाजिमीन और जू के बहुत सारे मुलाजिमीन ने मिलकर साफ सफाई का अमली मुजाहरा पेश करके वहां आने वाले लोगों को भी अपने अपने हलकों को इसी तरह साफ सुथरा रखने की तलकीन की। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल श्री PVR रेड्डी और जू की क्यूरेटर श्रीमती MS शिवानी डोगरा के साथ कई आला होदेदार वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। माह मुहर्रम में बारगाह यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह में भी हजरत इमाम कासिम के अलम बिठाए जाते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में जायजा लेने के लिए आज एक्स MLC जनाब अल्ताफ हैदर रस्वी और एक्स कॉर्पोरेटर जनाब नजीरुद्दीन ने अपने हामियों के साथ वहां का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस हुदूद में वाक़े मुगल का नाला इलाके में हालिया दो पड़ोसियों के बीच झगड़े में कुछ नौजवानों ने मुखालिफ नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया था, जिसकी बिना पर उसके सर पर 20 टाके और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी टाके लगे थे। उस नौजवान के लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया कि चूंकि नौजवान मरते मरते बचा है, इसलिए इक़दाम क़त्ल में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही इस मामले में शहर के एक न्यूज चैनल का भी मुतनाज़ा किरदार समाज के सामने आया है। उस चैनल पर इल्जाम है कि खबर गलत दी गई थी। बहरहाल वाज़ेह हो कि बगैर तफ्तीश के कोई खबर देना आज के माहौल में एक जुर्म ही माना जाता है। आज गोशा महल इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राम भूपाल राव की निगरानी में मल्लेपल्ली की मांगड़ बस्ती की मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबन 38 CC कैमरास लगाए गए। इस मौके पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री मधुकर स्वामी ने अपने सारे स्टाफ के हमरा ACP साहब की गुलपोशी की और तरक्की के लिए उनसे आशीर्वाद हासिल किया। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा के MRO ऑफिस से चोरी की खबर आई है। आज सुबह जब स्टाफ ऑफिस पहुंचा तो इस चोरी का पता चला। फौरन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने ऑफिस के पीछे से एक लैपटॉप बरामद किया जो शायद चोरों ने जल्दी से छोड़ दिया था और बिना उठाए फरार हो गए थे। बहरहाल जांच शुरू कर दी गई है। शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के लोगों ने आज 2 व्हीलर्स की चोरियों में मुलव्विस चोरों की एक बड़ी गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिनका ताल्लुक कामारेड्डी से बताया गया है। उन चोरों के पास से 13 मोटरसाइकिल्स को बरामद कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद की रचागुंडा कमिश्नरेट के LB नगर जोन की SOT ने आज संतोष नगर की साकिन मोहतरमा कौसर बेगम की एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहर में लैंड ग्रैबर्स की एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया। तफसीलात के मुताबिक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये लोग काम किया करते थे। पहले कुछ लोग खुले प्लॉट्स का सर्वे करते, दूसरी गैंग नकली पेपर्स बनाती और तीसरी गैंग उन नकली पेपर्स के जरिए उन प्लॉट्स को फरोख्त कर देती। तफ्तीश पर पता चला कि अभी तक इस गैंग ने कई प्लॉट्स नकली पेपर्स के जरिए बेच दिए हैं। गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं बंडलागुड़ा इस्माइल नगर के साकिन 30 साला अली बिन महमूद जाबरी वल्द महमूद बिन जाबरी,
मोहम्मद वसी उर्फ स्वीटी 35 साला वल्द मोहम्मद ताहिर, 24 साला मोहम्मद उमर खान वल्द मोहम्मद नईम खान, तालाब कट्टे का साकिन 42 साला मीर शाकिर अली वल्द मीर एजाज अली, वट्टेपल्ली ओड़म गड्ढे का साकिन 25 साला मोहम्मद अमान उर्फ साजिद, गौस नगर का साकिन मोहम्मद खलील उर्फ अब्बू वल्द मोहम्मद खदीर अली, इस गैंग के इस्माइल नगर का साकिन शेख अली बावजीर, फलकनुमा का साकिन मोहम्मद मुजीब खान और वट्टेपल्ली का साकिन मोहम्मद फेरोज फरार बताए गए हैं। पुलिस तहकीकात में जुड़ गई है। शहर हैदराबाद की शी टीम ने एक खातून से जबरदस्ती करने के वाकये में एक ओला कैब ड्राइवर 22 साला शिव कुमार को गिरफ्तार करके वनस्थलीपुरम पुलिस के हवाले कर दिया है। खबर है कि खातून ने गौली डुड्डी से लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए ओला कैब बुक करवाई और ड्राइवर शिव कुमार ने उस खातून को जबरदस्ती करते हुए आरामगढ़ की तरफ ले उड़ा। खातून के चिल्लाने पर उसने टैक्सी रोकी। इसी असना में खातून व्हाट्सएप पर कैब का नंबर और ड्राइवर का फोन नंबर शी टीम को भेज दिया और वो पकड़ा गया। इस मामले में अहम बात यह सामने आई है कि अगर किसी के पास व्हाट्सएप चालू ना हो तो उसका क्या होगा। क्या ऐसे में किसी खातून को शी टीम को फोन करने का वक्त मिलेगा? हो सकता है तब तक जुर्म हो जाए। रचाकुंडा की एसओटी ने आज शहर से एक नकली स्वामी का पर्दाफाश किया और हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के बमौजिब खम्मम का साकिन जो कि बालापुर में रहकर अवाम को बेवकूफ बना रहा था, 44 साला गुड्डी मिल्ला वेंकटा लक्ष्मी नरसिम्हा चार्युलू, जो अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बताकर यज्ञ के बहाने अवाम को लूट रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद खास बात यह देखने में आई कि उसके पास से एक नकली सीबीआई का कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस ने उसकी सारी चीजों के साथ उसे हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात में आ गई। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने एक आला सतही बातचीत में दोनों मुमालिक के दिफा के मामलात में एक होने का ऐलान किया है। भारत की वजीर दिफा मोहतरमा निर्मला सीतारामन से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेहमान ने पीएम मोदी से बाद में मुलाकात भी। हमेशा खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी सेक्टर के पास सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना अब्दुल खयूम नजर मारे जाने की खबर आई है। इस मौके पर दूसरी खबर यह भी दी गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ घुसपैठियों को पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल कर ली है। पीएम मोदी ने आज नए आईएएस कामयाब नौजवानों की बैठक को मुखातिब करते हुए सभी को लगन के साथ काम करने और 2022 तक आजादी के सिपाहियों के ख्वाब वाले भारत को बनाने में मदद करने की ख्वाहिश, उनसे जीएसटी और डिजिटल लेन देन के लिए भी काम करने के लिए कहा गया है। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के लोगों ने 104 दिनों से लगातार जारी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल वापस ले ली है। लिहाजा आज सुबह 6 बजे से वहां के पहाड़ी इलाकों में कामकाज शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के चीफ सेक्रेटरी जनाब अब्दुल्ला आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत आ गए हैं। इस दौरान खबर है कि वह वजीर खजाना श्री अरुण जेटली से मुलाकात भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि मुस्कान अभियान के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 70,000 से ज्यादा लापता बच्चों का पता लगाकर उन्हें बचा लिया गया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा वेब पोर्टल पेंसिल की योजना का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने लोगों से ये अपील की कि वो अपने नन्हे मुन्नों के लिए आगे आकर बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से काम करें और उनकी निगहदाश्त करें।